सो हेलो एवरीवन, हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोग टॉपिक कल कंटिन्यू कर रहे थे। हम उसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। The UNDP ranks member nation as per their SDI scores on a scale of 1 from 0.000 to 1 and classify them into 3 broad categories, है ना। तो the UNDP ranks member nations as per HDI scale of 1 from 0.000 to 1 point and classifies them into 3 broad categories. ना यूएनडीपी क्या करते हैं, मेंबर नेशंस को एसडीआई स्कोर्स में 0.00 से 000 से 1 तक स्कोर करता है ना। क्लासीफाई देम इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई करता है। हाई ह्यूमन countries, HDI score in the range of 0.800 to 1.0. Medium human development countries HDI score in the range of 0.500 to 0.799. Low human development countries
SDI to 0.499. The UNDP ranks member nations as SDI scores on the scale of 1 from 0.000 to 1.000 and classify them into 3 broad categories. तो SDI को UNDP क्या करती है, SDI scores के स्केल पे है ना 0.000 से 1.000 तक कंट्री को करती है 1 के स्केल पे, है ना, और 3 कैटेगरीज में कंट्रीज को डिवाइड करती है. हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज, है ना, एक वो कंट्री जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है. हाई स्कोर रेंज फ्रॉम 0.800 टू 1.000. मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज, है ना, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज SDI स्कोर इन द रेंज ऑफ 0.500 टू 0.799, है ना. मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज SDI स्कोर इन द रेंज ऑफ 0.500 टू 0.799. Low human development countries SDI score range of 0.000 to 0.499 तक, है ना. अब आगे क्या है, दो SDR gave experts a tool to measure development qualitative and quantitative achievements of nation. It is also criticized in various terms for being inclined towards monetary aspects, for considering all 3 variables equal in weights 0.333 each, and for being narrow in design, excluding the ethical aspects of life. In this regard, Bhutanese idea of gross national happiness needs to be mentioned. अब यहाँ पर हम लोग क्या होता है कि जो HDR है उसको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया. क्यों क्रिटिसाइज किया वो हम लोग डिस्कस करते हैं. The SDR has also been criticized on various counts, है ना. अब SDR क्यों क्रिटिसाइज हुआ वो हम लोग देख लेते हैं. For being inclined towards monetary aspect, है ना, पैसे को ज़्यादा, मॉनेटरी एस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है. फॉर कंसीडरिंग ऑल 3 एस्पेक्ट इक्वल इन वेट्स, है ना, तीनों एस्पेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है ना. मतलब यहाँ पर हम लोगों ने ये कर्सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लॉन्गेटिविटी और नॉलेज, यहाँ पर 3 चीज़ें थी, तीनों को इक्वली ह्यूमन SDR क्या करता है, तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है. थर्ड क्या है, excluding the ethical aspect of life, है ना. एथिकल एस्पेक्ट मतलब, है ना, एथिकल एस्पेक्ट लाइफ में एथिकल एस्पेक्ट को क्या करता है, SDR इग्नोर करता है ना, इग्नोर कर देता है या फिर एक्सक्लूड कर देता है. In this
regard in this regard the idea of gross national product GNH is considered need to be in this regard Bhutanese idea of gross national happiness needs to be mentioned है ना। तो इसमें क्या होगा, अब भूटान में एक अलग सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भूटान यूज करता है, ठीक है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को है ना भूटान में अलग सिस्टम होता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो हम नेक्स्ट हेडिंग हमारी वही है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ग्रॉस national happiness. Having seen the world's excessive emphasis on income, GDP out of disenchantment, the Bhutanese king proposed the idea of early 1970s and adopted it as a country's public policy. The world's excessive emphasis on the income out of disenchantment. The Bhutanese king proposed this idea by early 1970s and adopted a country's public policy guidepost in 1972. Later, it was entered into constitution in 2008. The idea was innovative and looked broader in the sense that it aimed to include non-material dimension of life to measure progress, है ना। अब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर it the two include the non-material aspect of life, ठीक है। तो नॉन मटेरियल ऑफ लाइफ टू मेजर प्रोग्रेस, ये क्या इंक्लूड कर रहा है, नॉन मटेरियल एस्पेक्ट लाइफ के, लाइफ टू मेजर प्रोग्रेस, नीड एम टू इंक्लूड द नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ टू मेजर प्रोग्रेस, है ना। प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए नॉन मटेरियल एस्पेक्ट लाइफ के भी इंक्लूड करता है क्या, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, है ना। कब ये अडॉप्ट हुआ था, है ना, ठीक है। प्रपोज्ड इन 1970s, proposed in early 1970s and adopted in 1972
and entered into Constitution in 2008. Now, it aimed to include non-material aspect of life to measure progress. प्रपोज कब हुआ था? अर्ली 1970 में, अडॉप्टेड हुआ था 1972 में, और कॉन्स्टिट्यूशन में कब आया था? 2008 में. The idea was innovative and looked global in sense that the GNH aims to capture the development achievements of a country on 4 parameters, है ना? ठीक है. GNH aims to capture the developmental achievements of a country on 4 parameters, namely first क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, पर कैपिटा इनकम. सेकंड, गुड governance, environmental protection, cultural प्रमोशन. ठीक है. तो अब देखो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है ना. अब देखो हम अब फिलहाल सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला कंट्री या फिर सबसे ज्यादा अमीर देश अमेरिका में दुनिया में कोई है तो वह है कि यूएस है. ठीक है. और एक डाटा और एक सर्वे में क्या पता चला कि 60% लोग 60 to 70 to 80% लोग तक अमेरिका में डिप्रेशन में है ना. डिप्रेशन में या तो बहुत खराब लाइफ जी रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है ना, बिल्कुल भी मतलब जीने की इच्छा ही उन लोगों में खत्म हो चुकी है. तो है ना. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. ठीक है. मतलब अभी हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि पैसा आ जाए, बहुत पैसा आ जाएगा तो क्या होगा, अपने आप लोग खुश रहने लग जाएंगे, अपने आप लोग अमीर हो जाएंगे तो अपने आप खुश हो जाएंगे, खुश रहने लग जाएंगे. पर अगर हम लोग जापान को देखें, अगर हम लोग अमेरिका में देखें तो सबसे अमीर कंट्री पूरे वर्ल्ड की अमेरिका है आज के टाइम में, यूएस है. फिर भी वहाँ पर हालत ऐसी है कि इतने सारे लोग डिप्रेशन में है ना. तो सबसे पहले भूटान ने ये कॉन्सेप्ट अपनाया. भूटान ने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि हम लोग मॉनेटरी एस्पेक्ट को थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस दें और दूसरी चीज़ों को लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें. तो एक चीज़ लेके आया जिसको नाम था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, है ना. भूटानीज किंग ने प्रपोज किया था कब? अर्ली 1970s में. एडॉप्ट हो गया 1972 में. उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कब आ गया? 2008 में. GNH aims to capture the development achievements of the country on the 4 parameters, है ना. कंट्री के डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स को 4 पैरामीटर्स पे GNH मापता है. मतलब हमारी कंट्री कितनी खुश है, कितनी डेवलप्ड है, इनको 4 पैरामीटर्स पे GNH नापता है. फर्स्ट पैरामीटर क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब लोगों का लाइफ का स्टैंडर्ड क्या, लोग कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं. अब अच्छे स्टैंडर्ड की लाइफ होने के लिए 4-5 चीज़ें कंसीडर की जाती है.
ना। फर्स्ट चीज़ क्या है, ठीक है, 4-5 अच्छी स्टैंडर्ड की लाइफ होने के लिए 4-5 चीज़ें कंसिडर की जाती है। फर्स्ट चीज़ उसमें क्या है ना, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, घर कैसा है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। सेकंड क्या है, गुड गवर्नेंस, है ना, गवर्नेंस कितनी अच्छी है किसी कंट्री में, गवर्नेंस कितनी अच्छी है वो चीज़। थर्ड क्या, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में उन्होंने ये देखा कि हम लोग हमारे इन्वायरमेंट को कितना प्रोटेक्ट करके रख पा रहे हैं। फोर्थ, कल्चरल प्रमोशन। फोर्थ क्या है, कल्चरल प्रमोशन। कल्चरल प्रमोशन में हम लोग उन्होंने क्या कंसिडर किया कि हम लोगों ने हमारे कल्चर को कितना प्रमोट करके रख पा रहे हैं, भूटानीज कल्चर को, और कितना प्रोटेक्ट करके रख पा रहे हैं, हमारे भूटानीज कल्चर को कितना प्रमोट करके और कितना प्रोटेक्ट करके रख पा रहे हैं। तो ये 4-5 चीज़ें है ना कंसिडर की, ठीक है। उन्होंने इंडेक्स बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। ओवर द टाइम GNH assimilated many most non-behavioral aspects of life. The Bhutanese idea did not find much attention from UN institution till the rise of behavioral economics, which cancelled the idea of economic man, है ना, ठीक है। Later GNH also assimilated many aspects of life. The Bhutanese idea did not find much attention from UN institutions till the rise of behavioral economics, which cancelled idea of economic man, ठीक है। तो GNH में क्या हुआ, बहुत सारे फीचर्स बाद में ऐड होने लगे, है ना। द भूटानीज आइडिया डिड नॉट फाइंड मच अटेंशन फ्रॉम UN इंस्टीट्यूशंस, है ना, UN इंस्टीट्यूशन से बहुत ज़्यादा पहले भूटानीज आइडिया मतलब GNH को बहुत ज़्यादा, है ना, अटेंशन नहीं मिला, ठीक है, जब तक क्या हुआ, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का राइज नहीं हुआ, जिसने क्या किया, इकोनॉमिक मैन का आइडिया पूरी तरह से क्या किया, कैंसल्ड कर दिया, मतलब पूरी तरह से उसको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। When the recent studies cancelled our long-held faith of economic men and recognized the behavioral aspects of human action, the GNH glowed cooperation. Meanwhile, in 2005, John Hopkins University of USA conducted a study headed by Stephen Prisoner and senior economist with UNDP in Bhutan, its development achievements. As per the study, during the period of 1948 1998, the country saw spectacular performance. Life expectancy increased by whopping 19 years. Gross school enrollment reaching 72% and literacy touching 47.5% from just 17%. अब देखो, है ना, GNH के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, है ना, GNH के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे वो हम लोग देखते हैं, है ना, ठीक है। UNDP conducted study in Bhutan
in Bhutan in 2005 and observed, क्या ऑब्जर्व किया है ना, क्या ऑब्जर्व किया यूएनडीपी में, यूएनडीपी में ये ऑब्जर्व किया लाइफ observed from 1947 to 98 1998, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी increased by 19 years. Gross school enrollment reaching 72%, ठीक है, literacy touching 0.5% from just 17%. The credit for such incredible development performance went to Bhutan. Different policy approach to progress, as there was no other obvious reason to explain it. After the idea of economic waves was cancelled by UN, the proposed to measure national happiness, the GNH worked as a guidepost since Bhutan was the only nation having some official experience in this area. ठीक है, तो है ना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भूटान में चेंजेस देखने को मिले कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ऑन एन एवरेज है ना कितना है, 2005 में स्टडी ने कंसिडर करी है ना, स्टडी की भूटान में यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी इंक्रीज हो गई 19 ईयर्स, ग्रोस स्कूल इनरोलमेंट कितना हो गया 72%, लिटरेसी टचिंग 47.5% फ्रॉम 17%, 17% से कितनी होगी लिटरेसी 47.5%, ठीक है ना। अब ठीक है, ठीक है, तो बाद में स्टार्टिंग में तो यूएन ऑर्गेनाइजेशंस ने इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं, ठीक है जीएनएच को, पर बाद में क्या किया है ना, बाद में जीएनएच को इम्पोर्टेंस भी दिया और उसको दूसरी कंट्रीज में अप्लाई करने की कोशिश भी की। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ जाती है हैप्पीनेस। हम लोग ये जो टॉपिक है हैप्पीनेस वाला वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।